So, good evening, friends. I'm Sunil Chandak here from Udyog Vardhini. I'm the director of Udyog Vardhini since last 35 years. I've been working in the field of entrepreneurship development, created more than 60,000 entrepreneurs till date. Basically, we are taking this webinar for preparing you to take up the challenge of Atmanirbhar Innovation App. Friends, now we are going through a very critical situation. At the same time, a lot of challenges and a lot of opportunities are there. So for India, it is really a golden time. We must be prepared to make ourselves a superpower. It can be done through innovation only. The innovation is the only answer to it. That is why our Honorable Prime Minister has launched this challenge. In every field, we need to only we can compete with China and other countries. See, friends, nowadays, every country rather, you can say, is boycotting China. And naturally, when we are boycotting China, we have to replace Chinese products. And that Chinese product can be replaced through even that can be better replaced by our innovations. So youngsters like you, not even youngsters, but even those who have got some ideas, they can come forward and take up the challenge. There is no age limit for innovation. I have seen people innovating at the age of 70 also. I have met people. So there is no age limit. You can always do it. And I think when Colonel Kashikar may be here, he has asked me that he is an ex-serviceman, and he had innovated one ventilator, which is the need of the hour. So friends, there is no age limit to any innovation. So you can always think about it and work on it. And for the purpose, we are here to prepare yourself. Since we have been promoting startups and even conventional entrepreneurs, we know the process. We know how it can be done. We have our virtual incubator already on. We have a group of angel investors. We have a group of mentors. And one such mentor and even investor is with you, Mr. Ishwar Shah. He is going to tell you something about what the program we have came out with for your benefit. दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि हम इसका चैलेंज ले, और ये सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं करना है हमें, सिर्फ ये 20 लाख के लिए, 15 लाख के लिए, 10 लाख के लिए नहीं करना। इनिशियली ठीक है, वो तो अपना है, एक अट्रैक्शन है, it is an excitement, it creates excitement, no doubt about it. But moreover, we should think about country. Innovation without patriotism cannot work, especially in this regard. You have to have country in mind. दोस्तों, कंट्री हमेशा हमें सामने रखनी चाहिए. अगर आत्मनिर्भर हमें बनाना है अपने कंट्री को, तो हमें वो करना है, और इससे हमारा चाइना के ऊपर का जो डिपेंडेंसी वो तो कम हो जाएगा. एट द सेम टाइम सिर्फ चाइना का डिपेंडेंसी नहीं कम करना है, हमें अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करने हैं. जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट है, वहां पे हम इंडियन प्रोडक्ट ला सकते हैं. सेम स्ट्रेटेजी हैज बीन अडॉप्टेड बाय जर्मनी एंड जापान आफ्टर they were demolished in the Second World War. So friends, they came out with a small sort of innovation. What Japanese has done, यूरोपियन अमेरिकन प्रोडक्ट वहां पे रातों रात आते थे, वो उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने कुछ इनोवेशंस किए, और आज पता है आपको जापान कहाँ है. वेरी स्मॉल कंट्री कंपेयर टू इंडिया, वेरी स्मॉल कंट्री, और काफी दिक्कतें हैं जापान में. अभी रिसेंटली बड़ा फ्लड से जापानी जूझ रहे हैं, आप सब टीवी पे देख रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स. हर साल more than 500 earthquakes they are facing. No natural resources, a lot of natural calamities happening everywhere. So friends, no, lot of things are there. In spite of all these things, Japanese could come out with innovations, and this is the thing.
because they had only one mission, that we have to now rule country by our products, not on the basis of war. So friends, ये जो राष्ट्रीयता है वो हमारे अंदर आनी चाहिए, वो अगर है और उसके साथ इनोवेशन जब जुड़ जाता है तो फिर वो इनोवेशन दिल से होता है। तो हमें वही काम करना है। अलग अलग फील्ड में मोदी जी ने चैलेंज रखे हैं, वो फील्ड आपको पता है, वो फील्ड के ऊपर अगर हम काम करते हैं और हर एक फील्ड में इनोवेशन क्या है, इनोवेशन इज सिंपल, उसका अगर सेंटेंस में डिफाइन करें तो इट इज अ सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके ऊपर अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपको पूरी तरह से, अगर आपका कुछ है आपके पास आइडियाज, तो आइडिया वैलिडेशन से लेके उसका इम्प्लीमेंटेशन तक पूरा गाइडेंस तो हम करते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी आइडियाज पिच लेवल तक आप कैसे ले जा सकते हैं, उसका इकोनॉमिक्स कैसे वर्कआउट करते हैं, और उसका एकदम रॉक स्टार की जैसा हमारा प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, ये पूरा आपको सिखाने वाले हैं जो एमिनेंट ऑलरेडी स्टार्टअप्स है, जो खुद स्टार्टअप है। एक एपिटल्स करके कंपनी जो है, जिनके आज CMD हमारे साथ है, और सिर्फ एपिटल करके, एपिटल कंपनी नहीं, उन्होंने उनके ही वाज द यंगेस्ट CEO ऑफ जी कम्युनिकेशंस एंड सेवरल टीवी ग्लैमरस इंडस्ट्री छोड़ के ही डिसाइडेड हिमसेल्फ कि चलो अभी हम कुछ युवकों के लिए करें, and then he started his own startup. He has developed his 3 startups, and nowadays he is promoting startups as well as mentoring them and as well as arranging finance for them. So friends, ये सब हमारे ईश्वर जी करते हैं, और स्टार्टअप्स के लिए तो डेफिनेटली ईश्वर ही है वो। तो विद दैट मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ और ईश्वर झा सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो ये जो हमारा मिशन है वो हम कैसे लेके जाने वाले इन लोगों को पिच लेवल तक, उसके बारे में वो जो प्रोग्राम हमने डिफाइन किया है और एक किस तरह वो हम जाएंगे उसके बारे में आप जरा बताएंगे। विद दैट वर्ड्स आई थैंक यू सर, और वेलकम करता हूँ ईश्वर झा सर का। सर वेलकम। थैंक यू। बस अभी आगे आप जाइए सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं ईश्वर झा आज आप लोगों से इस उद्योग वर्धनी के वर्कशॉप से जुड़ने के लिए काफ़ी आभारी हूँ। मुझे हमेशा एक चीज़ जो सिखाई गई है वो ये है कि अगर ज़िंदगी में हमारे पास धन दौलत पैसे ये सबसे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा समय, क्योंकि हमारी लाइफ के 2 चीज़ बहुत ही सीमित हैं। वन जो हमारा बर्थडे है और दूसरा जो हमारा डेथ डे है। और बर्थडे और डेथ डे के बीच का जो समय है वो उसको हम जिंदगी कहते हैं। और वो दोनों, बर्थडे तो हो गया हुआ है जो फिक्स था, डेथ डे भी हमारा जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही है, कभी भी आ सकती है, अगले सांस के साथ आ सकती है, अगले मिनट में आ सकती है, अगले घंटे में आ सकती है। तो ये फैक्टर तो है ही। तो लेकिन तो इसलिए कोई अगर मुझे अपना समय देता है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है हमारे साथ में इस फोरम से जुड़ने के लिए। उद्योग वर्धनी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं पूरे इंडिया में लगभग 300 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूं, जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मेंटरिंग, कोचिंग वगैरह के लिए काम होता है। मैं जब 2 रीजन से कि मेरे जिंदगी की जितनी भी बड़ी सफलताएं हैं वो मुंबई में आके ही मिली है, तो मैं मुंबई को अपना कर्म भूमि मानता हूँ। पिछले 22 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे जितना प्यार, स्नेह, अपनापन, रिश्ता ये मुंबई सिटी में रह के यहाँ के लोगों से मिला है, उतना मुझे शायद किसी और जगह से नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं महाराष्ट्र के इस कल्चर को शुक्रिया करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि समडे मैं मराठी सीख सकूं, और शायद मेरी कोशिश हुई है लेकिन मैं इसे कर नहीं पाया हूँ अभी तक।
तो जरूर सीखूंगा एक ना एक दिन इसको। बट फिलहाल मैं आपके साथ आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी। I know that now you all understand Hindi very well, so I'll try to keep as much as Hindi, and जहाँ पे मुझे कठिनाई हो that I can't speak in Hindi, तो मैं थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज करूँगा बिकॉज वो मेरी मजबूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये अभी एक वीक पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज। आप में से कितने लोगों को पता है इसके बारे में कि ये क्या है, इसमें क्या होने वाला है वगैरह? क्या आप सब लोगों को पता है कि ये चैलेंज क्या है और इसमें क्या होने वाला है वगैरह? खाली आप लोग यस या नो करके मुझे जवाब दे सकते हैं कि हाँ मुझे पता है, नहीं पता है, क्या पता है, क्या है ये? यस। सो ये हमें एक सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि हम सबको मजा मिल सके। मैं अगर इसको इंटरेक्टिव ना करूं, खाली मैं एक तरफा बोलता जाऊं, तो फिर आप सब बोर होने लगेंगे। तो मैं नॉर्मली सेशंस को इंटरेक्टिव रखता हूं। मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूं, मैं थोड़े सवाल पूछता हूं। तो आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे मुझे उतना ही ज्यादा मुझे भी मजा आएगा। मुझे लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारी काम हो रही है और हम समझ रहे हैं और लोग भी हमें समझ रहे हैं और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपने ये ऐप चैलेंज, आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो आप ये जानते होंगे कि अभी रिसेंटली इंडिया ने लगभग 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया इस कंट्री में। और उसका मेन रीजन दो रहा है। एक हमारी जो चाइना के साथ वार टाइप सिचुएशन चल रही थी बॉर्डर पे वो, और दूसरी सिचुएशन ये रही है कि आज जो हमारी डेटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, वो चाइना गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड सिस्टम्स में जा रहे थे और ये सर्टेन सिक्योरिटी लैब से सिक्योरिटी इश्यूज, हैजार्ड्स क्रिएट कर रहे थे हमारे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि हम इन ऐप से दूर जाएं, और ये हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, शायद आपको ये मालूम होगा कि आज की तारीख में हमारी कंट्री चाइना से 12,70,000 करोड़ वर्थ ऑफ मटेरियल हर साल इंपोर्ट करती है। और ये पेट्रोल नहीं है, ये डीजल नहीं है, ये गैस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, इवन हमारे जो गणपति भगवान हैं, हमारी जो नेशनल फ्लैग है, वो आज चाइना से इंपोर्ट हो रही है। तो ये एक बहुत, और आप ये सोचिए कि हमारी कंट्री का हमारा 12,60,000 करोड़ चाइना लेके जा रहा है, और उसकी इकोनॉमी और उसके लोग संपन्न हो रहे हैं, धनी हो रहे हैं, और हम यहाँ पर एक गरीब देश में जहाँ पे 50-60% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उनकी गरीबी है और हम उसको झेल रहे हैं। आज अगर वो 12,60,000 करोड़ का इंतजाम हम अपने अंदर में कर लें और चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी 0 कर लें, तो सोचे कि हमारी इकोनॉमी और कहाँ जा सकती है। तो आई थिंक ये जो ऐप डेवलपमेंट है, ये जो बैनिंग है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप्स है। और हमारे यहाँ जो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और इवन आप अगर नॉन टेक में हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर ये प्रोसेस को समझे। शायद आज गवर्नमेंट ने ये टेक्नोलॉजी के लिए चालू किया है, शायद वो बहुत जल्दी इसको हेल्थ केयर में, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको स्मार्ट सिटी में, शायद दूसरे एरियाज में भी लगाना, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। और अगर आपको प्रोसेस पता है, प्रोसीजर पता है, आइडिया की इनोवेशन कैसे करनी है वो पता है, तो आप काफी इजी तरीके से इस प्रोडक्ट को और या इस प्रोसेस के थ्रू में गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके 2-3 फायदे हैं। एक जो अभी थोड़े देर पहले जो सुनील जी कह रहे थे कि चाणक्य साहब कह रहे थे कि एक तो हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकता है, दूसरा ये हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि गवर्नमेंट के साथ अगर मुझे काम करना है तो कैसे करना है, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या प्रोसेस होता है। तीसरी, इनोवेट करना है अगर आइडिया को, तो वो कैसे करना है वो पता हम कर सकते हैं।
चौथी, हमें ये पता चल जाएगी इस प्रोग्राम के थ्रू जाने के बाद में कि हमें हमारी बिजनेस को, हमारे आइडियाज को 1000, 2000, 5000 लोग जो कल जब आप प्रेजेंटेशन करने जाएंगे, जो आपको पढ़ेंगे, आपको देखेंगे, आपको समझेंगे, तो शायद आपका एक कनेक्शन प्रोग्राम, एक नेटवर्किंग भी बनना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में, बहुत छोटे एफर्ट्स में, 1 महीना के अंदर में एक बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, हम सबके लिए। मेरे बारे में सुनील चांडक जी ने काफी कुछ आपको बता ही दिया हुआ है, तो मैं इसमें बिल्कुल ही समय नहीं देना चाहता हूँ। मैं खाली एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं कि यस, मैंने एक बहुत ही खास लिक्रेटिव कॉर्पोरेट करियर छोड़ करके इस एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में आया, और मैंने खुद के 3 बिजनेसेस किए हैं, 2 कंपनियां मैं सक्सेसफुली बेच के एग्जिट कर चुका हूं, अभी तीसरी कंपनी मैं चला रहा हूं। और मेरा ज्यादा जो फोकस है आज की तारीख में वो इसमें है कि मैंने एक मिशन लिया है कि मैं 1 मिलियन यंग स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बनाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप आज गौर से देखेंगे तो हमारे कंट्री के खाली 90% यूथ आर एम्प्लॉयबल। और इसके कारण क्या हो रहा है कि आज जैसे ही ये कोरोना का संकट आया, हमारे मैक्सिमम लोग आज अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, वो घर पर बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इनकम के जरिया थे, जो लेबर ड्रिवन जॉब था, वो बंद हो गया है या खत्म हो गया है, और हम 140 करोड़ के पॉपुलेशन के बीच में रह रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि हम अपने यूथ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयबल बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने नेशन को ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाएं, अपने आप को ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाएं और नेशनली कॉम्पिटेंट बनाएं, ताकि ये जो चाइना वाले हैं, जर्मनी वाले हैं, जापान वाले, अमेरिका वाले हैं, वो अपना प्रोडक्ट ले आकर के हमारा पैसा ना ले जाएं। तो मेरा एक मिशन है कि मैं 1 मिलियन यंग यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना चाहता हूं। मेरा दूसरा जो मिशन है दोस्तों, वो ये है कि मैं 10,000 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंडिया में बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे एफर्ट से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सुनील चांडक जी जैसे लोगों के साथ मिल करके 10,000 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अब उसके लिए साथ मुझे 10 लाख लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़े, 1 करोड़ लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़े, वो मैं उसमें वर्क कर रहा हूं, लेकिन 10,000 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को मैं नर्चर करना चाहता हूं। और इसीलिए आज मुझे आप लोगों के साथ ये 1 घंटा जो मैं स्पेंड करने वाला हूं, उसमें जितनी खुशी है, आपको मैं कह सकता हूं कि मुझे किसी और चीज में उतनी खुशी नहीं मिलती है। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? अभी जो फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपटीशन है, वो उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जिनके पास ऑलरेडी रेडी टू लॉन्च प्रोडक्ट है। तो अगर आपके पास रेडी टू लॉन्च प्रोडक्ट है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप अगर ये पूरी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कल को इस कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको क्या करना है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज जो जरूरत पड़ती है वो है कि आप जो एंटरप्रेन्योरशिप की गेम है उसको समझिए। दूसरी चीज है कि आपको जो कम्युनिकेट करना है अपने आप को, अब क्या हो गया, अब आपको घर बैठे लोगों के साथ काम करना है, तो जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन में एक ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए। People should be happy to talk to you, happy to listen to you, happy to see your work. तो कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरत हो गया है। और कम्युनिकेशन का मतलब खाली ये नहीं है कि आप बात कैसे करते हो, आपकी वेबसाइट होने दीजिए, आपकी बिजनेस कार्ड होने दीजिए, आपकी लोगो होने दीजिए, आपके कपड़े होने दीजिए, पहनावा ओढ़ावा होने दीजिए, आपके वर्ड्स होने दीजिए, आपके आर्टिकल्स, आपके ब्रोशर, आपके राइटअप जो भी है, सब कुछ में एक ट्रस्ट और एक प्रोफेशनलिज्म का लैंग्वेज होना ही चाहिए, का मिक्स होना ही चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है दोस्तों, वो है कि आप इमोशनली कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं आपको कहूं कि मैं तो बिल गेट्स से भी बड़ा अमीर था, लेकिन आज की तारीख में गरीब हो गया हूं, वर्सेस मैं कहूं कि मैं तो एक आप ही के जैसा ऑर्डिनरी आदमी हूं, लेकिन काम कर करके जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप मेरे से ज्यादा इमोशनली नंबर 2 पे कनेक्ट करेंगे। आज हम अमिताभ बच्चन को गॉड मानते हैं, सचिन तेंदुलकर को गॉड मानते हैं, इसलिए नहीं कि दे वर बॉर्न क्रिकेटर्स और बॉर्न एक्टर्स। आज हम उनको गॉड इसलिए मानते हैं कि उन्होंने भी एक छोटी सी शुरुआत की थी,
अमिताभ बच्चन जब मुंबई में आए थे तो स्ट्रीट पे मुंबई के स्ट्रीट पे सोते थे। सचिन तेंदुलकर ने जब अपनी क्रिकेट की पारी शुरू की थी तो उनका बचपन काफी चैलेंजिंग था, और लेकिन उन्होंने वहां से स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करके एक एम्पायर खड़ा कर लिया, एक लार्जर देन लाइफ सिचुएशन खड़ा कर ली। चाहे वो धीरू अंबानी, भाई अंबानी होने दीजिए, हनुमंत गायकवाड़ आपके यहाँ के होने दीजिए, अशोक जी होने दीजिए नासिक के, ये सब लोगों ने एक इमोशनल फील और सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट की है अपने कम्युनिकेशन से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, अपने वर्क से। ये आपको करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज जो जरूरत है दोस्तों वो है एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना आपके कस्टमर्स और आपके स्टेक होल्डर्स के साथ में। और पांचवी चीज जो जरूरी है वो है रेगुलेटरीज एंड कंप्लायंसेस क्राइटेरिया को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। आज चाइनीज ऐप बंद हो गया है, उसके लिए इंडिया और चाइना के रिफ्ट से भी ज्यादा जो बड़ी चीज है वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज ये जानती है कि आपने टिकटॉक यूज किया या आपने जो भी ऐप यूज किया है जो चाइना का था, वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। आप क्या देख रहे हो, आप क्या शेयर कर रहे हो, आप क्या लाइक कर रहे हो, आप क्या सर्च कर रहे हो, सब उनको पता है। तो अगर चाइना के गवर्नमेंट को इंडिया के लोगों को मैनिपुलेट करना है तो आज एक वो साइबर वार खेल सकते हैं, वो ऐसे चीजें दिखा सकते हैं जिससे लोग चाइना को प्यार करने लगे। और जब कल को अगर चाइनीज गवर्नमेंट को इंडिया को कुछ करना है तो पब्लिक इतनी पागल हो गई है, ब्लाइंड हो गई है चाइना के बारे में कि बोलेगी अरे मेरा गवर्नमेंट तो बेवकूफ है, चाइना के साथ ऐसा कर रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल एंड इमोशनल एंड कल्चरल लॉबिंग। तो हमको आपको तो लगता है अरे यार क्या मैं चाइना का मार खा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, चाइना का टिकटॉक देख रहा हूँ उसमें क्या हो गया। लेकिन उसके जो एल्गोरिथम, आज आपको शायद आपने सुना होगा कि जब यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई थी तो ट्रंप ने पूरे इलेक्शन कैंपेन को फेसबुक के जरिए इन्फ्लुएंस कर लिया था और अपने कंट्रोल में ले लिया था। लोगों को वही दिखता था जो ट्रंप को दिखाना था और ट्रंप के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ा सकता था और उसको वोट देने में कन्वर्ट कर सकता था। तो इंफॉर्मेशन आज की तारीख में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि मैं ये 59 ऐप्स को बंद कर दूं, ताकि ये ऐप्स वो जरिया ना बने जिससे हमारे देश के पब्लिक हमारे देश की चीजों, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदर्शों को छोड़ करके चाइना के मूल्यों और आदर्शों को समझना या उसका ये हो जाए। तो ये रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जब अगर आप करते हैं ना तो आपकी जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से आप जीते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है, सपोज आज आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं तो आप एक आपको, मैं हमेशा अपने बच्चों को भी या अपने फैमिली को भी या सबको कहता हूं कि अगर आज आप 10 रुपए की सैलरी ले रहे हो तो आपको 100 रुपए की काम करनी पड़ती है। बट जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आज 100 रुपए का अगर मेहनत कर रहे हो तो 100 रुपया तो आपको मिल ही रहा है, ऊपर से आपका फ्यूचर 100 का 1000 और 1000 का लाख और लाख का करोड़ होने के लिए रेडी हो रहा है। तो मैं इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि आप एक ओरिजिनल इंसान पैदा हुए थे। आप जिस एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, एजुकेशनल बैकग्राउंड में, पॉलिटिकल सर्कल में गए, वहां पर कहीं ना कहीं किसी ने आपको आपसे चुरा लिया। एंटरप्रेन्योरशिप एक जरिया है, इट इज अ मीडियम बाय व्हिच यू कैन क्लेम योरसेल्फ टू लिव ओरिजिनल। और मैं हमेशा कहता हूं when you are born original, you must live original, you must die original. Why to die a photocopy of something or someone? ये जितने लोगों के फोटो इस वॉल में हैं वो इस संसार में आए, उन्होंने एक पर्पज, एक मिशन चूज किया, उस मिशन पे काम किया और उस मिशन के थ्रू अपनी जिंदगी बनाई, अपनी सफलता देखी। तो दोस्तों आज आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ये जो ऐप चैलेंज है, और अगर आप टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल हैं और आप इसमें से किसी भी चैलेंज के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो आज खड़ा हो जाइए, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए और देखिए कि आप कैसे इसको आगे लेके जाते हैं। आप प्राइज जीते ना जीते मैं नहीं जानता हूं, एक चीज मैं जरूर आपको गारंटी दे सकता हूं और ये आपको कह सकता हूं कि आप वो प्रोसेस सीख जाएंगे
आप उस सिस्टम सीख जाएंगे जिसके जरिए अगर वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई, आप इस सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करके आप भी इंडिया को वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में, वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनाने में, वर्ल्ड की टैलेंट सुपर पावर बनाने में आपका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट द मिशन आई हैव बियॉन्ड एनीथिंग एल्स. सो सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि I should be like a 19-year-old all the time, right? So I think to be an entrepreneur, age is just a number. It is all about your thinking. अगर आप अपने आप को एक 19 साल के लोगों की तरह में देखें, जब आप 19 साल की उम्र का थे, तो आप देखेंगे कि आपने क्या किया 19 साल में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि 19 साल की जो उम्र होती है वो एक आदमी के जीवन की सबसे बड़ी माइलस्टोन होती है, जहां पे आप अबाउट टू ग्रेजुएट एंड यू डिसाइड योर डेस्टिनी. So if any point of time you have to start deciding on your destiny, start thinking like if you are a 19-year-old, what would you do? So if I am a 19-year-old, I will do first thing is that I will know my potential first and I will work towards that. And आपकी जो रियल पोटेंशियल है वो ये नहीं है कि आपकी रियल पोटेंशियल है तभी ही आप रियलाइज कर पाते हैं जब आप वो गेम के रूल को समझते हैं. आपको अगर ऐप चलाना है तो आपको ऐप के सक्सेस का गेम क्या समझना बहुत जरूरी है. आपको उस ऐप को कैसे कम्युनिकेट करना है, उसके फीचर्स और बेनिफिट को प्रोफेशनली और ट्रस्ट के साथ, ये बहुत जरूरी है. तो ये मैं सबसे पहला चीज यही बोलता हूं कि आप जो है सो वो चीज करें जिससे आपका पोटेंशियल सही तरीके से यूटिलाइज हो. सेकेंड इज आप स्मार्ट लोगों के साथ जुड़िए. वो एक इंग्लिश में कहावत है, वो आर सम टोटल ऑफ 6 पीपल यू मीट इन योर लाइफ. मतलब आप जिंदगी में वही हैं जो सबसे 6 लोगों के करीब आप हैं, आसपास में आप हैं. तो अगर आप स्मार्ट 6 लोगों के साथ में हैं तो आप स्मार्ट हैं. आप 6 बेवकूफ के साथ में हैं तो बेवकूफ हैं. अगर आपके कंपनी में आपने एक बिजनेस चालू की और 6 गलत लोगों को आपने शुरू में हायर कर लिया तो आपकी कंपनी कभी भी आगे नहीं जा सकती है. तो एक स्मार्ट लोगों के साथ में होना बहुत जरूरी होता है. थर्ड है, मैं अभी वो एक पिक्चा करके या पिच्चू करके पिक्चर देख रहा था कल. बहुत इंटरेस्टिंग मुझे सीन आया. मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास में नेटफ्लिक्स कनेक्शन है या यूट्यूब पे जाके देखिए. एक लड़का है छोटा सा 10 साल का, और उसे वो सबसे पहले एक टैक्सी में बैठता है तो बोलता है, अरे वाह भाई तुम्हारा तो लाइफ बहुत ही मस्त होएगा, तो मुझे भी टैक्सी ड्राइवर बनना है. थोड़े देर के बाद में वो टैक्सी उतर करके सॉकर का, फुटबॉल का मैच देख रहा होता है, बोलता है मुझे भी फुटबॉल का प्लेयर बनना है. उसके 5 मिनट के बाद में वो थोड़ा आगे बढ़ता है और एक बाइक पे पुलिस वाला के साथ जा रहा होता है तो बोलता है मुझे भी पुलिस वाला बनने का है. तो हमारे साथ यही हो गया है. हम मॉर्निंग उठते हैं तो हमें कुछ और बनना है, दोपहर को कुछ और बनना है, शाम को कुछ और बनना है, रात को सोते सोते कुछ और बन जाते हैं. तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमारे पास एक मिशन हो और हम उस मिशन के लिए काम करें. फिर हमें जो है सो एक रिस्क लेना है लाइफ में, लेकिन सही तरीके से रिस्क कैसे लें, सोच समझ करके रिस्क कैसे लें. देन अगर आपको अभी लगता है मैं स्टार्टअप के लिए रेडी नहीं हूं तो आप किसी स्टार्टअप के साथ काम करके उसको सीख सकते हैं. और आप कोई भी काम अगर ऐप का बिजनेस करते हैं तभी करें जब आप तन मन धन से तैयार हैं. इसलिए नहीं करें कि यार अभी तो कोरोना आ गया, जॉब खत्म हो गई हुई है तो चल देख लेते हैं बिजनेस स्टार्ट कर लेते. आई एम टेलिंग यू, अगर आप उस माइंडसेट के साथ में बिजनेस करेंगे, अगर 3 महीने में कोरोना के कारण सिचुएशन नॉर्मल हो गई, आप बिजनेस शट डाउन कर देंगे और आप कुछ और करने लगेंगे. मैं तो ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनकी नौकरी चली जाती है तो सबसे पहले वो लिंक्डइन पे जाके एक लाइन अपने प्रोफाइल पे चेंज करते हैं
एंटरप्रेन्योर इन अ स्टील्थ मोड। और जैसे ही 7 दिन 10 दिन में उनको कहीं जॉब मिल जाती है, फिर चेंज कर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी, और जनरल मैनेजर ऑफ सो एंड सो कंपनी, और मैनेजर ऑफ सो एंड सो कंपनी, और एग्जीक्यूटिव इन सो एंड सो कंपनी। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी लेवल को बताने के लिए एंटरप्रेन्योर मत लिखिए। अगर आप रेडी टू रोल हैं, आप को लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है, रिसोर्सेस हैं जो आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आप बिजनेस करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, मैं ये स्लाइड ऑलमोस्ट अपने सारे प्रेजेंटेशंस में लोगों के साथ शेयर करता हूं। हमें लगता है कि सक्सेस एक स्ट्रेट पाथ है। एक्चुअली सक्सेस का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत सारे बम्प्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। अभी देखो, जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ तो जो सैलरी वाले थे उनको तो लगा कि मेरी सैलरी कैसे मिल जाएगी, और कुछ सरकार ने कह दिया कि 2-3 महीने आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, या आपको सैलरी दी जाएगी या कट करके दी जाएगी। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर था हमारे जैसे, वो सबसे पहले यही सोचने लगे कि मैं लोगों को सैलरी कैसे दूंगा, क्योंकि 30 तारीख को मेरे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं आते, मुझे मेरे अकाउंट से देने पड़ते हैं। तो सक्सेस का रास्ता, और सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है जिसमें हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और एक जो सक्सेसफुल लीडर है या जो पर्सन है, वो जो एंटरप्रेन्योर है, वो 4 चीजें हैं। वो एक ड्रीमर है जो सपने देखता है, वो एक थिंकर है। धीरू भाई अंबानी ने एक सपना देखा कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्लांट रिफाइनरी मुझे बनानी है, और बना लिया। मुकेश अंबानी ने देखा कि मुझे जिस समय में इंडिया की सारी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो रही थी, शटडाउन हो रही थी, उन्होंने एक सपना देखा और उन्होंने आज जियो इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे सक्सेसफुल टेलीकॉम कंपनी खड़ा कर लिया। पतंजलि के बाबा रामदेव ने एक सपना देखा और सबसे बड़ा हाइजेनिक और नेचुरल या ऑर्गेनिक या देसी एफएमसीजी ब्रांड खड़ा कर लिया। तो एक सबसे पहला ड्रीमर है। वो ड्रीमर उस ड्रीम को सही करने के लिए थिंकर है, सोच सकता है सही दिशा में। वो अपनी थिंकिंग को लोगों को बताने के लिए और लोगों के बीच में लाने के लिए एक अच्छी स्टोरी, कहानी बना सकता है। और जब वो ये सब करता है तभी वो लीडर है। अगर वो ड्रीम नहीं कर सकता है, वो थिंक कर नहीं सकता है, वो स्टोरी, अपनी कहानी ठीक से नहीं बता सकता है, और वो लीड नहीं कर सकता है फ्रंट से अपने बिजनेस को या अपने आइडिया को या अपने कॉन्सेप्ट को या अपने वर्क को, तो वो एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि आप एक एंटरप्रेन्योर ये चारों चीजें कैसे, और ये दोस्तों स्कूल में पढ़ाई जा सकती है, लोगों से सीखी जा सकती है, एक्सपीरियंसेस के जरिए जाकर के आपको इसको समझना पड़ेगा। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी आपके सामने में एक ऐप चैलेंज रख दिया है, तो सॉरी, एक बिजनेस करने के लिए हमें क्या, ये जो ऐप चैलेंज है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 वर्ड यूज किए हैं, टू आइडिएट, बिल्ड, लॉन्च, नर्चर, सॉरी, बिल्ड एंड नर्चर। आइडिएट का मतलब होता है कि जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें मेरे पास में माइंडसेट है क्या, मैं रेडी हूं क्या, मेरे में वो एंटरप्रेन्योरियल कंपास है क्या। दूसरी चीज अपॉर्चुनिटी क्या है। तीसरी चीज उस अपॉर्चुनिटी को ट्रू करने के लिए, लॉन्च करने के लिए क्या इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी। चौथी चीज, आज देखो पूरी वर्ल्ड ये कोरोना के दवाई ढूंढने के लिए इनोवेशन कर रही है। सारे लैब, सारे बायोटेक्नोलॉजी फर्म, सारे रिसर्च साइंटिस्ट, सारे बायोलॉजिस्ट सब यही ढूंढ रहे हैं कि ये कोरोना का तोड़ कैसे निकाला जाए। तो दैट इज इनोवेशन। And what they are trying, they are not trying to go and find another composition. Oh, they are taking some bit from one fever, some bit from another fever tablet, something from cough cold, something from choking, something from for a protein boosting or whatever, and they are trying to mix and match and create a new tablet or new composition to help us get rid of this coronavirus, and that is called innovation. The fourth thing that you will need to look at the customer. Who is my customer? Who is my competition? How will I sell? How will I market? How will I do a business development? How
what is my business model, what kind of IP and patent I can register for this business, what is my time to market. If I decide to launch my business today, what is the time that it is going to take, and is that a sufficient time? What is my product development process? How long will it take, what all and how long it will take me to build the product, do the product development? How will I get the funding? How will I launch? How will I scale? And when you have an answer to all these questions, that is the process of building a startup business. Startup business building is not about just having an idea or building an app. That's why if you see there are 3 million apps on the App Store. All the 14 app challenges that government of India has announced, वो सारे के सारे already 10-10, 15-15, 20-20 apps बन के रखे हुए हैं. फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चैलेंज कर दिया कि आप ऐप चैलेंज लो. तो आपको क्या लगता है कि आपने 3 लाइन का एक लिख दिया, सर आई हैव गॉट दिस ऐप, दे विल सेंड यू 20 लाख रुपीज चेक इन योर होम? नो, दे वांट टू सी कि जो मैं उसके फॉर्म को आपको दिखाऊंगा. दे वांट टू सी हाउ कॉम्प्रिहेंसिवली यू अंडरस्टैंड दिस ऐप बिजनेस. They want to see how ready you are to launch or ideate, launch, scale, and build and launch this app business. How well you are prepared to be an entrepreneur. And if they find that you have all of these things, they will come forward and hand over you 20 lakh rupee check, or 10 lakh rupee check, or 5 lakh rupee check, whatever that award money is. But अगर आपके पास में ये सारे आंसर नहीं है जब आप सबमिट करते हो, मैं बताऊं तो आप लोगों को कि दोस्तों, खाली अगर ये स्लाइड के सारे पॉइंट्स को आपने सही तरीके से एक बिजनेस प्लान बना करके और अच्छे वर्डिंग के साथ, ग्राफिक के साथ, डेटा के साथ सबमिट कर दो, अगर आपको कॉल ना आ जाए गवर्नमेंट इंडिया से तो आप मुझे बोलना. लेकिन प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा. आप खाली सोचोगे कि मैं वहां जाके एक फॉर्म भर दूं और मुझे मिल जाए, तो आपको नहीं मिलने वाला है. सॉरी. yes. So, अब जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास हमारा प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग कैसे हो जो हम उसको बेच सकें, और दूसरा देखना होता है कि कौन इसको खरीदेगा, और तीसरा कौन इसके लिए पे करेगा. तो डिजिटल की आप मोस्ट ऑफ द बिजनेस देखो तो से फेसबुक, तो फेसबुक को बाय कौन करता है? हम और आप. हम अपनी प्रोफाइल डालते हैं, हम अपने कोड शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, और वो देखने के लिए हमारे फ्रेंड्स आते हैं, और उसके साथ में एक एडवर्टाइजर अपना ऐड डालता है और पे करता है. तो इससे फेसबुक को बिलियंस ऑफ डॉलर, $700 बिलियन का टर्नओवर बनाते हैं. तो हर आइडिया के लिए ये देखना है. बाइजू जैसे ऐप को देख लीजिए, तो बाइजू जैसे ऐप को खरीदता एक बच्चा है, पे उसका पापा करता है और यूज बच्चा करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी बिजनेस करो तो ये समझो. अब मैं सीधा स्ट्रेट आ जाता हूँ. ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू हो गया है क्योंकि मैंने आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट किया है इसको. बट अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने टोटल 14 चैलेंजेस बताए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस 14 एरियाज में आपके पास अगर ऐप रेडी है तो आप मुझे सबमिट कर सकते हैं. What I would suggest to Sriram is, Sriram, I have shared with you the 14 ideas ka the PDF file where I have analyzed all of these ideas in details. तो हमने एक 48 पेज का वर्कबुक बना दिया है जहां पे हमने सारे आइडिया को एक 5Ws फ्रेमवर्क बोलते हैं. What, how, when, why and where. तो 5Ws में मैंने इस पूरे आइडिया को पूरा एनालाइज किया है. हर आइडिया के लिए 2 पेज का. I would suggest that Sriram, please put it on a Google Drive and share the link so all these people can download it and read it, and if they want to use, they can use any of these ideas. Yeah, sir, we'll do that. Sure, thank you. अब ये अगर एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे आप तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपको सबमिट करना है तो आपको नाम डालना है, आपकी ईमेल एड्रेस डालनी है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपका फोटो अपलोड करना है, नेशनलिटी है, बायोडेटा 2 पेज का डालना है,
आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो वो डालना है। और उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको 5000 अप टू 5000 वर्ड में एक्सप्लेन करो। इसका मतलब है कि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि इतने सारे चीजों को आपको के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करके आपको ये एक प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके वो पढ़ करके ही जो बोर्ड हैं, जो इवेल्युएटर्स हैं, वो इसको इवेल्युएट करेंगे। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए एक सिस्टम के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और वो सिस्टम है आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने 14 प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग कर दी है साइट पे कि ये 14 प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, आप सबमिट करो। लेकिन ये एक्चुअली एक लाइन है वहां पे, और इस एक लाइन को मैंने 2-2 पेज के डॉक्यूमेंट बना दिए हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में श्रीराम शेयर कर देंगे आपके साथ में, गूगल ड्राइव का लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं, या और उसके बेसिस पे फिर आप खुद एनालाइज करके उसको फर्दर एनहांस कर सकते हैं। दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट बनाने में मुझे काफी टाइम लगा। मैं और मेरे 2 बच्चे, हमने 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 18 आवर्स नॉन स्टॉप काम किए। उसके लिए सारे रिसर्च किए, सारे इंटरनेट पे सर्च मारे, खुद के आइडियाज लगाए, खुद के इनोवेशंस किए, और हमने ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं। ये काफी हेल्पफुल होगा अगर आपको इंटरेस्ट है या आपको जस्ट समझना है कि आपकी बिजनेस की क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कैसे बिल्ड होता है, तो आपको जस्ट एक आइडिया दे देगा सारे प्रॉब्लम्स को, ये प्रॉब्लम कैसे एनालाइज करना है। तो कल को अगर आपके पास कोई और भी ऐप की आइडिया है तो आप उसको देख करके अपने आइडिया को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझना है, उसके बाद में वो प्रॉब्लम कौन से कस्टमर के लिए है उसको समझना है, फिर उस कस्टमर को हम क्या ऑफर करेंगे, ए वैल्यू प्रोपोजिशन, जो वो कस्टमर को लगेगा कि हाँ यार ये चीजें मुझे मिल जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, उसको हम डिफाइन करेंगे। एक बार वो समझ में आ गया तो अब हम ये देखेंगे कि मैं कुछ अनफेयर एडवांटेज क्रिएट कर सकता हूं क्या, मैं कोई यूएसपी क्रिएट कर सकता हूं क्या, मैं कोई पेटेंट रजिस्टर कर सकता हूं क्या, मैं कोई आईपी डेवलप कर सकता हूं क्या, जिससे कि इसको कोई कॉपी ना कर सके, या इसके लिए कस्टमर मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दे। आज एप्पल का, आप एप्पल की फोन, आईफोन देख लो, they are charging at least 50-60% premium over any other phone in the market. That is because they have created this ecosystem of servers, music, movies, experience that is so seamless कि हमको लगता है यार हमें इनको प्रीमियम दे देना चाहिए। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर चैनल, आप वो कस्टमर को जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे डिलीवर करोगे, उनके कौन सा चैनल यूज करोगे। आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करोगे, एसईओ करोगे, वेबसाइट बनाओगे, टेलीविजन पे एडवर्टाइजिंग करोगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो क्या चैनल यूज करोगे, और फिर आप पैसा कितना कमाओगे। और उसके बाद में जब ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको देखना है कि ये सॉल्यूशन कैसे डिजाइन होगा। वो जब सॉल्यूशन बन गया तो आप उसको मॉनिटर कैसे करोगे, आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। तो सो फॉर एग्जांपल आपने एक ऐप लॉन्च किया, तो आपको कितने लोगों ने उस लिंक को क्लिक किया, कितने लोगों ने डाउनलोड किया, कितने लोगों ने साइन अप किया, कितने लोगों ने फ्री ट्रायल यूज किया, कितने लोगों ने पैसा पे किया, तो ये मैट्रिक्स भी आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और तब आपको देखना है कि ये करने के लिए मुझे खर्चा कितना लगेगा। और अगर आपको लगता है आज, कल, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल में आपका कॉस्ट, आपकी रेवेन्यू आपके कॉस्ट से ज्यादा होगी और आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो, तो दोस्तों आपको बिजनेस करना चाहिए। नहीं तो आपको फिर से अपने बिजनेस मॉडल पे काम करना चाहिए, फिर से आपको इसमें रिसर्च करना चाहिए, या फिर से कोई दूसरी आइडिया सोचनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जिस आइडिया में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ये नहीं आती है कि मेरी रेवेन्यू मेरे कॉस्ट से ज्यादा होगी, और मैं जब तक मेरी कॉस्ट ज्यादा है तब तक मैं अपने आप को सस्टेन कर सकता हूं, चाहे सेल्फ फंडिंग से, दोस्तों की फंडिंग से, फ्रेंड की फंडिंग से, इन्वेस्टर की फंडिंग से, जहां से भी आपको मिले, तब तक आपको उस आइडिया को परस्यू ही नहीं करना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये मिस्टेक कर देते हैं और उनका बिजनेस फेल हो जाता है। They are not able to run their company. 90% of startup businesses fail just because entrepreneurs like you and me do not give enough care to this one seed.
So if you see, give a care to this one seed, I am telling you, you will be 100% successful. अब अभी जब मैंने आपको ये सिस्टम बताया है तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यार मेरा प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करूं, सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करूं, नेट वैल्यू प्रोविजन कैसे डिफाइन करूं। आप जब इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, आप जब कस्टमर के पास जाएंगे, कंपटीटर के पास जाएंगे, इन्वेस्टर के पास जाएंगे, एडवाइजर के पास जाएंगे, अपनी एम्प्लॉय को हायर करने जाएंगे, सब यही पूछेंगे, सर आप करना क्या चाहते हो। देखते हो नहीं, वो एक फिल्म में डाले, अरे कहना क्या चाहते हो। तो ऐसे ही वो आपको पूछेंगे करना क्या चाहते हो, और अगर आपने कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दिया और आप ये क्वेश्चन रह गए तो बोलेंगे दिस गाय इज नॉट रेडी टू बी एन एंटरप्रेन्योर। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबमिट तो कर दिए, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से नहीं दिए, दे विल फील व्हाट इज दिस गाय डूइंग, व्हाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम एंड माय टाइम। And I told you, friends, I said you first, thank you for your time because I value your time. I will, during this presentation or during in my lifetime, I will not even take 1 minute of your time just for something which is meaningless or useless. So this is very important for you to have the answers to this question. And the only way to get the answer is to know exactly how to crack the code. And not only get the answer, but get the answers with so much of conviction, so much of confidence, so much of clarity, that when someone hear you out about your idea, they just get a smile on their face. They say, oh, wow, this is awesome. When they look at your value proposition, they say, oh, wow, it's so promising. When customer use over, they say, oh my God, this guy knows exactly whom to sell and how to sell. So you have to start loving what you are doing. And the real love happens only when you got 100% clarity, 100% conviction, 100% confidence. आप एक अपोजिट सेक्स अपने किसी गर्ल को या किसी बॉय को शादी के लिए प्रपोज करने गए होगे, अगर आप ऐसे शादीशुदा है तो आप जानते हो, आप जब शादी करने के लिए गए होगे तो उस लड़की को कहोगे, अरे डार्लिंग मैं तो तेरे को चांद पे, और आपने गाना सुनाई होगा, चलो दिलदार चलें चांद के पार चलें, राइट, फूलों का वो क्या बोलते हैं, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, आ चल के तुझे मैं लेके चलो एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये सब क्या है? ये सब यही तो है। जो लवर है वो इतना कन्विंस्ड है, इतना क्लियर है, इतना कॉन्फिडेंट है कि सामने वाला उसको अपना हाथ देता है, कहता है यस आई एम रेडी टू बी योर लाइफ पार्टनर। क्या आपके बिजनेस का आइडिया है, उसके लिए जब आप अपने स्टेक होल्डर्स को मिलने जाओगे, कस्टमर को, कंपटीटर को, मेंटोर को, इन्वेस्टर को, एडवाइजर को, टीम को, वो ये फील करेगा एज ऑफ टुडे? नहीं करेगा। तो आप ये गुण सीखो और आप इस गुण को क्रैक करो और तब आप अपने बिजनेस लॉन्च करो और देखो आप कहाँ पे पहुंच जाते हो। और मेरा पर्पस यही है दोस्तों कि मैं आपको आज इसमें से एक आइडिया है जिसको मैंने यहाँ पर ले लिया है और मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। तो मैंने एक आइडिया ले लिया है लीड जनरेशन का, जो चैलेंज नंबर 3 है उस लिस्ट में। सरकार मोदी जी ने कहा है कि आप एक लीड जनरेशन का ऐप बनाइए जिससे लोग मोबाइल से बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। लीड जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेप और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू कन्वर्ट अ स्ट्रेंजर into a prospect into a paying customer। तो आज इस वर्कशॉप में आने से पहले आप सब मेरे लिए स्ट्रेंजर थे। अब अगर मुझे कुछ बेचना है तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझते हो तो आप मेरे प्रॉस्पेक्ट हो गए हो, और अगर मैं आपको कन्वर्ट करके अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच लूं तो आप मेरे पेइंग कस्टमर हो गए, और वो है लीड जनरेशन। तो मैंने उसको क्रैक किया। लीड जनरेशन एंड लीड नर्चरिंग इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स एज कस्टमर्स सेंड इंक्वायरी इंटरेस्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस।
आज अगर आपने देखा होगा तो आप में से काफी सारे लोग इस वर्कशॉप में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आपको कोई ईमेल गया होगा, या आपने फेसबुक पे ऐड देखा होगा, या आप के किसी दोस्त ने आपको फॉरवर्ड कर दिया होगा व्हाट्सएप का मैडम। अब उसको वहां से तो एक मीडियम से लीड नहीं आ रहा है, बहुत सारे मीडियम से लीड आ रहा है। दूसरा, लीड मैनेजमेंट रिक्वायर्स यू टू हैव अ मल्टीपल कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन। तो अगर आदमी व्हाट्सएप पे आया तो उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, एसएमएस पे आया तो उसको एसएमएस से ही मैसेज भेजना है, उसको ईमेल भेजना है, उसको कॉल करना है, राइट। उसको रीमार्केटिंग करनी है कि एक बार उसने अगर आप मेरे ऐड को क्लिक कर दिया लेकिन वो रजिस्टर नहीं किया या साइन अप नहीं किया, तो बार बार उसको वही ऐड दिखाते रहने का है। देन कस्टमर का जो डेटा है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, उसको एक जगह मैनेज करना। नहीं तो आधा हम अपने मोबाइल पे रखते हैं, आधा ईमेल पे रखते हैं, आधा कहीं रखते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम भूल जाते हैं उस कस्टमर को। तो ये 3 चैलेंजेस हैं। उस 3 चैलेंज को मैं किसके लिए सॉल्व करूंगा, तो मैंने लिखा है मैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स के लिए करूंगा। और सबसे पहले मेरा कस्टमर कौन होगा, तो बिजनेसेस लाइक स्पा, सलून, रेस्टोरेंट, जिसका बिजनेस अभी बिल्कुल खत्म हो गया है ये कोरोना के कारण से। फिर मैं उसको क्या ऑफर करूंगा, तो मैं उसको ऑफर करूंगा इंटीग्रेटेड एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबल ऐप फॉर लीड कैप्चर, लीड नर्चरिंग, सेल्स एंड सेल्स कन्वर्जन। तो मेरे ऐप को यूज करके वो आदमी को जैसे ही उस फेसबुक में किसी ने फॉर्म भरा उसको उधर दिख जाएगा, जैसे ही वो फॉर्म उधर आया उसको एक कस्टमर को एक एसएमएस या ईमेल चला जाएगा या व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। जैसे ही वो कस्टमर ने वो व्हाट्सएप मैसेज को खोला, मुझे पता चलेगा, मैं उसको कॉल कर लूंगा, सर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए था, मैं आपको भेज सकता हूँ। कस्टमर ने कहा मैं अभी बिजी हूँ, मुझे कल आप कॉल करो, तो इमीडिएटली मैं वहां पे जा करके एक रिमाइंडर डालूंगा कि कल 11 बजे मुझे रिमाइंड करो, इस वजह को मुझे कॉल करना है। फिर मैं एक डैशबोर्ड दे दूंगा उस कस्टमर को, जहां पे उसको पता चलेगा कि मुझे मेरे पास में ये लीड्स हैं, ये नए आए हैं, ये इसके मुझे फॉलो अप करना है, ये मेरे को क्लोज हो गया, ये मेरे को जो है सो नहीं क्लोज हुआ, खराब लीड है, इसको अभी आर्काइव में भेज दो, डिलीट कर दो। तो ये मुझे एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। फिर मेरे को एक जगह पे कस्टमर डेटा मैनेजमेंट रहेगा। मुझे सर्च करना है ऑल द कस्टमर्स हु इज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन आत्मनिर्भर भारत वर्कशॉप, तो मुझे एक बार पता चल जाना चाहिए। और मेरा मोबाइल ऐप बिल्कुल सिक्योर रहेगा ताकि उसका डेटा लीक ना हो जाए, किसी और के पास ना चला जाए, या कोई और उसको एक्सेस ना कर ले। तो ये 4 चीजें मैं वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करूंगा। उस कस्टमर को मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, इंडस्ट्री सेमिनार के थ्रू, ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू एजुकेट करूंगा और उस तक पहुंचूंगा, और उसे एक मंथली सब्सक्रिप्शन फी उस कस्टमर से चार्ज करूंगा जब वो मेरे ऐप को यूज करना शुरू कर देगा। और इसके लिए मुझे एक इंटीग्रेटेड ऐप बनाना होगा, उसमें ऑटोमेटिक लीड कलेक्शन फ्रॉम वेबसाइट, पेड एडवर्टाइजिंग, कस्टमर कॉल को स्टोर करने का फीचर डालना होगा। फिर मुझे वो सॉल्यूशन ऐसा हो कि किसी भी चैनल के थ्रू मुझे लीड नर्चरिंग करना है तो वो करने को करे, टास्क मैनेजमेंट, रिमाइंडर, सेल्स फोरकास्टिंग करने के लिए रखेगा। फिर कस्टमर डेटा मैनेजमेंट के लिए फिर मैं नंबर ऑफ एप्स डाउनलोडेड, रजिस्टर्ड, साइंड अप, ये सब को ट्रैक करूंगा, और ये सब मेरे कॉस्ट होंगे। और मैं देखूंगा कि मेरा ये दोनों टैली हो रहा है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा ये बिजनेस। तो ये, और अब इसी को अगर मैं एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके वर्ड में लिख के वो 5000 का जो वर्ड्स का जो बॉक्स मिला उसमें डाल दूंगा, तो नरेंद्र मोदी की टीम के जो इवेल्युएटर हो तो कहेंगे यार बुलाओ इस बंदे को, इसके पास तो आंसर है ही, ये जानता है कि धंधा कैसे करना है। अभी शायद ये पूरा 100% रेडी नहीं होगा, 50% रेडी होगा, 30% रेडी होगा, 70% रेडी होगा, लेकिन बुलाओ इसको, सुनो इसकी कहानी। और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग उद्योग वर्धन से जुड़ करके, अगर आपको चाहे आप अभी आइडिया सबमिट करने के लिए रेडी हैं तो भी आप सीखें इस टैक्टिक्स को। अगर आपको स्टार्टअप बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं तो भी इसको सीखें। अगर आपको जस्ट एक बिजनेस लॉन्च करना है और फ्यूचर में जब कंपटीशन आए उसके लिए रेडी होना है तो भी आप इस प्रोग्राम को अटेंड करें। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि आप इसके 5-6 सेशन करने के बाद में एक अलग लेवल पे हो जाएगा। और यहीं पे मैं अपने टॉक को कंप्लीट भी करता हूं। आप में से किसी के पास में भी कोई भी क्वेश्चन होगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू एन आंसर, सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड आई शुड बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द आंसर। Yes, आई sir. एम, यस,
Yeah, thank you so much, sir. And we have like plenty of questions already. अच्छा, okay. Yeah, I'll take one by one questions. Yes. So first is, can we work on more than one app simultaneously? Is So it can I stop the screen sharing? And that's not needed, right? okay? Yeah. Yeah. So the first question is, can we work on more than one apps simultaneously? And is it compulsory to work in teams? Yes. मैंने देखो प्रॉब्लम कैसा है ना बॉस कि मैं कभी भी, इसलिए आपने देखेंगे तो मैंने आपको शुरू के ही स्लाइड में कहा था मैं पहले एक चीज पूरा करूंगा. It is not only about developing the app, it is also about seeing that people are using it. You are not developing app for the sake of developing it, then you are an IT solution company. If you are getting into app business, I would suggest you first build one app, learn the entire tactics of cracking that app to a successful business, start generating revenue there, and then build the second app, then build the third app, then you build 100 apps, doesn't matter. See, today what has happened, I will tell you a beautiful example. So TikTok is shut down, right? You know which is the first company to come and give you something like TikTok? It is Facebook. Yesterday they launched, so they already had this Instagram Live or something. Reels, Instagram Reels. Yeah, yesterday they renamed it as Instagram Reels, and so only for India. So what I would suggest, you take one idea, crack it in a right way, and then get into a second idea or third idea. Don't work on 10 idea. Second thing, again I have told, ये आपको शुरू में ही मैंने कहा था कि work or build things with the smart people. वो एक गाना आपने सुना होगा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना. तो अकेला तो भाई वो कहावत है, अकेला बृहस्पति भी कमजोर होता है. बिल्कुल आप अकेले काम मत करो, टीम बनाओ, टीम के साथ काम करो, टीम के साथ सक्सेसफुल हो. आप बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, इंडिया बढ़ेगा, तभी हम समृद्ध देश बनेंगे. नहीं तो फिर तो हम ऐसे ही अकेला करते 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 थक जाएंगे, कितने लंबा चलते रहेंगे. Of course, must have a team. And who is asked this question? What is the name? 1 minute, sir. Yeah, just tell me the name also. Sloka. Loka. Sloka. 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 Make one idea, make it larger than life, hire or work with the smart people, see, take care of their happiness, success and growth, and then do a 1 idea, 2 idea, 10 idea, doesn't matter. But do one at a time. Yes, sir. Next question is by Anuj. He is saying that उनके पास एक innovative idea है, but IT के and tech skills नहीं है. तो आगे कैसे बढ़े उसमें? इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल का den है, मतलब खदान है, और जिसे आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको ढूंढ रहा है. अगर आपके पास में ये पूरी तैयारी है जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन के थ्रू की थी, तो आप अभी जा करके कहीं पे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे कहीं पे सर्च मारो, आपको सारे प्रोफेशनल दिख जाएंगे. आप उनको बोलो भैया मुझे लगता है आपके पास वो स्किल है जिससे इस ऐप को कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे. अगर आपको खुद नहीं करना है तो आप कौन से सिटी में मुझे नहीं पता, अगर आप नासिक में हो तो नासिक में मुझे लगता है उद्योग वर्धन कम से कम 25 डेवलपर को आपको कनेक्ट कर देंगे 1 घंटा में, जो आपके लिए सही तरीके से ऐप बना देगा. और वो सब उद्योग वर्धन से जुड़े हुए तो आपको चीट भी नहीं करेंगे, आपके साथ में गलत काम भी नहीं करेंगे. ये फोरम पे ही अभी जो लोग हैं उसमें कुछ लोग होंगे जो ऐप डेवलप करते होंगे, आप उनके साथ अभी जुड़ जाओ और अभी के अभी आप जो है सो अपना काम शुरू कर सकते हो. तो आइडिया अगर रेडी है, मैंने जो आपको प्रिपरेशन बताया, अगर आप उसी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, आपके पास में क्या डिजाइन होनी चाहिए. मेरे पास समय कम था एक्चुअली, ये पूरी प्रेजेंटेशन करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे. अभी मैंने दोपहर में यही सेशन मतलब एक जगह किया था, तो वहां पे 2,500-3 हजार लोग थे और मुझे 2 घंटे लगे पूरा करने में. तो अगर आपके पास में पूरी आइडिया डेवलप्ड है, आपके पास में सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई वुड सजेस्ट यू दैट राइट नाउ हियर फ्रॉम दिस फोरम यू विल गेट अ पीपल हु कैन हेल्प यू बिल्ड इट. आई डोंट थिंक डेवलपर की कमी है इस इंडिया में. यस सर, यस सर. यस. नेक्स्ट इज सर, एक मोबाइल ऐप का बनाने का प्रोसेस क्या होता है, एंड ऐप का कोई पेटेंट ले सकते हैं क्या?
और उसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि बेसिकली अगर आपने पेटेंट बनाया तो उसका कुछ रिपोर्ट पब्लिश करना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट। तो ये कौन क्वेश्चन, अब को नाम ही बताओ तो मैं थोड़ा सर्वेश का क्वेश्चन है सर। किसका? सर्वेश। सर्वेश, ओके। सर्वेश, ऐप में बहुत सारे पेटेंट हो सकते हैं, डिजाइन के पेटेंट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी अगर स्पेसिफिक आपने इनोवेशन की है उसके पेटेंट हो सकते हैं, जिस तरीके से आप प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पेटेंट हो सकते हैं। तो 3 पेटेंट आप ले सकते हो ऐप के लिए। दूसरी जो आपकी क्वेश्चन थी वो थी कि प्रोसेस क्या होती है। ऐप डेवलपमेंट की प्रोसेस सबसे पहली होती है, आप ये लीन कैनवास में वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो ऐप क्या होना चाहिए, उसकी स्कोप को प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई करो। अभी थोड़े देर में आपको श्रीराम बताएंगे कि एग्जैक्टली ये थोड़ा एक एलोबरेटेड प्रोग्राम भी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो जो 6 दिन का 7 दिन का प्रोग्राम है, हर दिन 2 घंटे आप हमारे साथ रहोगे, तो आप यस आप उसको समझ लीजिए। उससे भी ज्यादा ऐप डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद में होती है वैलिडेट करना कि कस्टमर जो मैं रिक्वायरमेंट मैं समझ रहा हूँ कस्टमर की वही रिक्वायरमेंट है क्या, उसके बाद में उसकी प्रोटोटाइपिंग होती है, उसके बाद में उसकी डिजाइन होती है, उसके बाद में टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर लॉन्च होती है। ये प्रोसेस से वो जाती है 5 स्टेप प्रोसेस में। यस सर। एंड जैसे आपने बताया तो मैं अभी कोर्स पेज बेसिकली लोगों को शेयर करता हूँ। यस, कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज का जो है उसके रिलेटेड हमने 5 डेज का एक हैकेथॉन लॉन्च किया है। तो इसमें आप जो चैट बॉक्स में लिंक डाला है उसके थ्रू आप ये पेज पे आ सकते हो। तो डे 1 में हम आपको ये बेसिकली हमारा गोल क्या रहेगा कि बड़े ऐप का आइडिया क्या होता है तो वो कैसे डिस्कवर करना उसके बारे में कवर करेंगे। सेकेंड डे में बिल्डिंग द प्रोडक्ट दैट कस्टमर रियली वांट, मतलब आइडिया काफी होते हैं बट कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए तो उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं उसके बारे में हम डे 2 में कवर करेंगे। फिर थर्ड है कि आपने जैसे आइडिया सिलेक्ट किया कस्टमर को जो पसंद है तो उसके रिलेटेड बिजनेस मॉडल कैसे बनाए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कैसे करे, वो रहेगा। फोर्थ डे में प्रेजेंटेशन उसका आपको ये चैलेंज में सबमिट करना है तो आपको ये प्रेजेंटेशन आपको सबमिट करना है तो ये आपके अगले स्टेज में आप जा सकते हो। तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे बने उसके बारे में रहेगा। और फिफ्थ डे में वो प्रेजेंटेशन लोगों को शेयर कैसे करना है, आपको पिच कैसे करना है उसके बारे में फिफ्थ डे में कवर होगा। और ये काफी सेशन सारे इंटरेक्टिव रहेंगे। और 5 डेज का वर्कशॉप है। जैसे आपको पता है कि ये जो ऐप इनोवेशन चैलेंज है इसका लास्ट डेट सबमिशन का 18 जुलाई है। तो बेसिकली ये 10 दिन का कोर्स है बट हमने क्विकली 5 डेज में जैसा आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सबमिट कर पाए इसलिए हमने 5 दिन का ही रखा है, मंडे टू फ्राइडे। और 17 तारीख को ये खत्म होके आप 18 को इसको आप सबमिट कर सकते हो प्रधानमंत्री मतलब वो ये इनोवेशन चैलेंज में। इसका फीस सर ये पूरा कवर करेंगे एंड इसका फीस हमने सिर्फ 1500 रुपीज ही रखा है 5 डेज का। एंड इसका इवेंट ये डेली 2 घंटा चलेगा दोपहर में 2 से 4 के बीच में। तो आप ये टाइम पे लाइव जूम पे आओ एंड आपको सर सारे इंटरैक्टिव सेशन में सब पॉइंट्स कवर करेंगे। सो यस सर आपको हाँ, तो आप खाली मैं इसमें आपको 2 चीजें कहना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने कभी भी ये प्रोग्राम किया है, आपके नासिक में भी किया है, तो मैं 5,000 रुपए से कम तो लिया ही नहीं है 6 घंटे का प्रोग्राम का। लेकिन बिकॉज ये आप सब एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है और हमने देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और कोविड वाले सिचुएशन में काफी सारे लोग बिना काम के हो गए हुए हैं, हमारे देश में एक चैलेंज है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें। और अगर आप पूरी प्रोग्राम इनके वेबसाइट पे आई थिंक इन्होंने लिंक शेयर करेंगे तो आप जाके देखेंगे, फुल्ली इंटरेक्टिव है। हर दिन आपको प्रेजेंट करना है, हर दिन आपको थोड़ा वर्क करना है। मतलब मैं 2 घंटा आपके साथ काम करूंगा, उसके बाद आपको जाके कम से कम 4 घंटा खुद काम करना है और नेक्स्ट डे आपको फुल्ली प्रिपेयर होके आना है। और मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों को देना चाहता हूं, आप में से जो भी आदमी जो पार्टिसिपेट अगर 25 लोगों ने किया और जिसने सबसे बेस्ट पार्टिसिपेशन किया, जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा प्रेजेंट किया पूरे प्रोग्राम में, और जिनका लास्ट में आप सब लोग वोटिंग करेंगे, हम सब लोग मिलकर, जिनका सबसे बेस्ट हुआ नंबर 1 पर्सन, उसको फीस 1500 रुपया है, 3000 रुपए का रिवॉर्ड मेरे तरफ से मिलेगा।
ग्रेट सर, ग्रेट। तो मैं डबल कर दूंगा उसके रिवार्ड। आप मेरे साथ, अगर आप, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूं, अगर आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको बोलता हूं आप आ जाओ। 5 दिनों तक आप मेरे साथ में कमर कस के काम करो और छठे दिन जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करो। नहीं सबमिट करते हो तो छठे दिन से काम करना शुरू करो। नेक्स्ट चैलेंज में जरूर रेडी होकर के सबमिट करो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो पैसा लो ना लो अलग बात है, एक ऐसी बिजनेस क्रिएट करो जो इंडिया का प्रोडक्ट होकर के। नरेंद्र मोदी को नेक्स्ट टर्म में इंडिया में ऐप चैलेंज नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए कि यार इंडिया में हमारे इतने अच्छे अच्छे ऐप हैं, और उसमें नासिक के, महाराष्ट्र के 5 एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अच्छे ऐप बनाए, और ये आज ग्लोबल लेवल पे रॉक कर रहा है। यस सर, यस सर, ग्रेट। सर शैल आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन? यस प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी कॉमन है, बेसिकली एक आइडिया सबके पास होता है, पर शेयर करने से सब लोग डरते हैं कि कोई आइडिया वो चुरा ना ले। तो इसको कैसे फेस करें और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़े? दोस्तों आप मुझे, मैंने आपको एक आइडिया का सीट में 14 चैलेंज शेयर किया था, वो सारे एक एक लाइन के आइडिया है, और उसके ऊपर मैंने 48 पेज का डॉक्यूमेंट बना दिया है। आज के तारीख में ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है जो मार्केट में नहीं है, और अगर मार्केट कहने लायक नहीं है तो करने लायक तो बिल्कुल नहीं है, मैं यही मानता हूं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पास वो आइडिया है जो कहने लायक नहीं है लोगों को, तो मैं आपको पहले बताता हूं वो करने लायक भी नहीं है। करेक्ट सर। ठीक है, तो अगर आप, और तीसरी चीज, अगर आपने मुझे बता दी और मैंने वो कर लिया, तो ये जो यहां पर एक नसीब है ना, इसको भाग्य बोलते हैं, लक, ये आपका है। वो शायद आइडिया चुरा लेगा, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी तैयारी, वो जो मैंने अभी स्लाइड्स में बताए हैं, वो गुर, वो कैसे चुरा लेगा आपसे? तो आप आइडिया चोरी होने के ऊपर बिल्कुल ये मत करो। कोई आपको आपसे ना चुरा ले, कोई आपके कैलिबर को, आपकी शक्ति को, आपके ताकत को ना चुरा ले, उसके ऊपर काम करो। यस सर। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक का आप नाम भी, आप yes. नाम भी बताओ मुझे। हाँ। यस सर, एक्चुअली उन्होंने कंपनी के नाम से है डुकानोमी ऑनलाइन। हाँ। तो उनका ऐसा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मतलब उनका ऐप रेडी है सर, आइडिया रेडी है, बट ये जो 14 कैटेगरीज है उसमें फिट नहीं हो रहा है, वो स्टिल सबमिट कर सकते हैं? उन्होंने साइट पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन चांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल चांस ले लो। शायद वो जो रिव्यू कमेटी है उनको लगेगा कि आइडिया यूनिक है और हमने कवर नहीं किया है, वो सर्टेनली आपको कंसिडर कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। एंड सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये ऐप बनाने को इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? ओके मैंने आपको बताया ना, मैंने वो सीट बताया था। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि आपने वो शोले फिल्म देखा होगा, राइट? तो शोले पिक्चर में वो बोलते हैं कितने आदमी थे वो, ठीक है? करेक्ट। और ऐसे ही हमको ना आदत हो गया हुआ है कितना लगेगा बोलने का। आप घर पे जाओ, अपने पापा को बोलो मुझे बिजनेस करना है, पूछेंगे कितना लगेगा। आप एक फ्रेंड के पास जाओ, बोलो दोस्त मुझे एक बिजनेस करना है, बोलेगा कितना लगेगा। आपको भी आदत हो गई है ये पूछने की कि कितना लगेगा। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, जो मैंने वो सीट से बता अभी आपके साथ प्रेजेंट कर रहा था लीन कैनवास का, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। बाद में वो जो नीचे कॉस्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, उसमें आकर के देखो कि मेरे को ये बिजनेस आने के 4 चीजें लगेंगे। आप अभी के अभी इंटरनेट पे जाकर के 4 आईटी कंपनी को ढूंढो, उनको बोलो कि मुझे ऐसा कुछ एक आइडिया बनाने का है। आपको 1 घंटा में कोटेशन मिल जाएगा कि उसमें 5,000 लगेगा, 25,000 लगेगा, 5 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा, 5 करोड़ लगेगा। दोस्तों एक भी बिजनेस आज की तारीख में, एक भी ऐप 10,000 रुपए से लेकर के 10 करोड़ तक, अब मैंने अपनी जिंदगी में 110 एप्लीकेशन, 114 एप्लीकेशन एज ऑफ टुडे बनाया है, और वो 10,000 रुपए से लेकर के और 56 करोड़ 56 करोड़ के रेंज का है। तो आज वही हो रहा है। हम भी, हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर इंडिया से आते हैं। एक अमेरिकन को पूछो, कभी नहीं बोलेगा हाँ मेरा 1,000 रुपए का है ऐप बना दो। इंडिया में तो बोलेगा अच्छा मेरे पास 5,000 रुपए, आप कुछ बना के दे सकते हो क्या मुझे?
बिल्कुल मत करो, वो 5,000 भी डूब जाएंगे। मेरे पास तो हर महीने कम से कम 25 लोग ऐसे आते थे, बोलते बॉस मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, उसको 10,000 रुपये दे दिया, उसने ऐप बनाया नहीं, मेरा पैसा डूब गया, मैं परेशान हो गया। कितना दिन मैं बताया ना दोस्त, एक बात याद रखो, हमारे इंडिया में इसकी कदर नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका जन्मदिन और डेथ दिन फिक्स है, उसके बीच का जो समय है ना वो सबसे बहुमूल्य है। कोई बंदा अगर कोई भी बंदा या कंपनी या एंटरप्राइज अगर आपको सही काम सही भरोसे सही तरीके से 10 दिन में और 10,000 की जगह 15,000 में करके दे, लेकिन ये आपको कन्विंस करे, कॉन्फिडेंस दे कि ये सही काम करके दे रहा है, उसे करवा लो। जो बंदा बोले कि मैं 10 दिन में 5,000 रुपए में करके दूंगा ना, वो 100% आपके साथ चोरी कर रहा है। आप भी अगर किसी का काम कर रहे हो ना, तो हमेशा ये बात सोच के रखो। देखो मार्केट में 1,500 रुपए की मोबाइल फोन बिकती है और 1.5 लाख की आईफोन भी मिलती है और सबके खरीदार हैं। आपको देखना है कि मारुति 800 भी है और मर्सिडीज भी है। 1 रूम किचन का इकोनॉमी हाउस भी है और 25 करोड़ का पैलेसियल बंगलो भी है। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनाना चाहते हो और उसको जो बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आपको कॉस्ट लगेगी। मैं या कोई भी दुनिया का आदमी कहता है अच्छा 25,000 में बना दूंगा, क्या आइडिया बताओ, सोच लो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Sir, we have covered all the questions. Very good. And we are running a little bit ahead of our time. So thank you so much, sir. आपने आज बहुत information दिया और बहुत अच्छे से गाइड किया। And I hope कि ये सभी लोग ये आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज में पार्टिसिपेट करें एंड जो उनके अवार्ड्स है वो भी मिले और आगे अपना ऐप इंडिया का फ्यूचर भी ब्राइट करे। So thank you so much, Ishwar sir. Thank you so much. Thank you very much, everyone. Wish you all the best, and if you decide to enroll, see you soon. Thank you very much. Yes sir, thank you. And जिनको आज का वेबिनार वापस अटेंड करना या लेट हुआ तो आप उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो एंड वहां पे ये वेबिनार वापस अटेंड कर सकते हो एंड चैट बॉक्स पे जो लिंक आ रहा है उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे भी आपको लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का। सो मंडे से स्टार्ट हो रहा है एंड यू कैन ज्वाइन विद दैट रजिस्ट्रेशन। सो थैंक यू सो मच, ईश्वर सर, अगेन। Bye. Take care. Bye. थैंक यू, बाय। Thank you guys. Take care.